پاکستان ایٹمی اثاثوں کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار۔ پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے، نئے ضوابط لاگو کر کے سیکیورٹی کو مؤثر بنایا گیا۔ پاکستان کا ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں دنیا بھر میں 19واں نمبر ہے۔ نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس کی اعترافی رپورٹ۔ لداخ میں چین اور بھارت کے مذاکرات ناکام۔ چین نے 40,000 فوجی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پہنچا دیے۔ دفاعی سسٹم، آرٹلری سمیت دیگر اہم ہتھیار بھی نصب۔ امریکہ نے بھارت کو اہم پارٹنر قرار دے دیا۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چینی فوج کی پیش قدمی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ انکشاف کیا کہ امریکہ ایشیا میں اپنی فورسز کو تیار کر رہا ہے۔ از سر نو تعیناتی کا مقصد چین کے ساتھ ممکنہ مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں بہتری، 24 گھنٹوں میں 1,763 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 2,69,190 ہو گئی۔ مزید 32 مریضوں کا انتقال۔ سندھ میں 2,060، پنجاب میں 2,100، خیبر پختونخوا میں 1,158، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 45، آزاد کشمیر میں 48 اور اسلام آباد میں 162 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,54,06,31,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 1,46,183، برازیل میں 82,890، روس میں 12,745، بھارت میں 29,890، ایران میں 14,853، افغانستان میں 1,190 اور سعودی عرب میں 2,601 اموات۔ یہ بھی بات بنتا ہے، یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کر خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو۔ There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نیب کو بند کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں نیب غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ، چیئرمین نیب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ نیب کو صرف اپوزیشن کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پنجاب کی ٹیم کو نااہل اور نالائق قرار دے دیا، کہا شہباز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سینیٹر رضا روبانی نے بھی احتساب کا نیا قانون لانے کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پارلیمان نے کردار ادا نہ کیا تو تاریخ کے مجرم ہوں گے۔ ایک نئے فیڈرل اکاؤنٹیبلٹی قانون کی ضرورت ہے، سب کے لیے یکساں قانون بنایا جائے، ایک قانون اور ایک طریقہ کار سب کے لیے ہونا چاہیے۔ حکومتی وزراء بھی میدان میں آگئے، مراد سعید کہتے ہیں چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے، عمران خان وسیلہ ہے۔ عمران خان نے رائے ونڈ اور سندھ کے چوروں سے بیک وقت قوم کی جان چھڑائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بلاول کی نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے انہیں عوام کو لوٹنے سے نہ کوئی روکے نہ پوچھے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، اپوزیشن سیاسی بلی تسلیم کر لے۔ شہباز بلاول ایک دوسرے پر اعتماد سے گریزاں ہیں، احتجاجی تحریک چلانے اور پانی سے پکوڑے تلنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت کا عید کے بعد ریسٹورنٹس اور ستمبر کے پہلے ہفتے شادی ہالز ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال کہتے ہیں عید تک ایس او پیز بنا کر وفاقی حکومت کو بھجوائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت تنہا نہیں، وفاق اور دیگر صوبوں کو ساتھ ملا کر فیصلے کرتی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس،
نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے 33 ارب روپے سبسڈی کی منظوری۔ پاکستان آرمی کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کی بھی منظوری۔ زرعی شعبے کے لیے کھاد پر سبسڈی دی جائے گی۔ NFC کی تشکیل پر وفاقی حکومت نے یو ٹرن لے لیا۔ وفاقی حکومت نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو NFC سے نکال دیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کی درخواست نمٹا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ صوبے سے متعلق امور، سیاسی صورتحال اور گندم آٹے کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ خوشحال خان کھٹک، بولان میل اور موہنجو دڑو ٹرین بحال کر دی گئی۔ سندھ کا وفاق سے مطالبہ۔ عبید شاہ کہتے ہیں شیخ رشید نے 2 سال میں ٹرینوں کا برا حال کر دیا۔ عمران خان نے انہیں ریلوے کو دیوالیہ کرنے کے مشن پر لگا دیا ہے۔ کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کلادن تنظیم کے 5 دہشت گرد گرفتار۔ ہٹ لسٹ اور مختلف اقسام کا اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں کا ٹارگٹ کلنگ کی 6 سے زائد وارداتوں میں ملوث اور 4 ٹیموں کے فعال ہونے کا انکشاف۔ امریکی ریاست الاسکا میں زلزلے کی شدید جھٹکے، شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی۔ سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جانی اور مالی نقصان کی تصدیق نہ ہونے کے بعد وارننگ 2 گھنٹوں بعد واپس لے لی گئی۔ فاسٹ بولر محمد عامر کا دوسرا کورونا سیمپل بھی منفی آ گیا۔ نیگیٹو آنے پر انگلینڈ کے لیے رواں ہفتے پرواز بھریں گے۔ عامر کا پہلا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ مساجر محمد عمران کا بھی دوسرا ٹیسٹ لیا گیا۔ دونوں بایو سیکیور ماحول میں مقیم ہیں۔ فاسٹ بولر سہیل خان وقار یونس کے گرویدہ کہتے ہیں پریکٹس میچ میں اعلیٰ کارکردگی بولنگ کوچ کے مرہون منت ہے۔ لیجنڈ نے لیٹ سوئنگ کا فن سکھایا۔ وقار یونس کی قومی اسکواڈ میں موجودگی کا سب کو ہی فائدہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے لیگ اسپنر عمران طاہر نے پاکستان چھوڑنے کو بڑا دکھ قرار دے دیا۔ کہا پاکستان کی نمائندگی نہ کرنے کا افسوس ہے، مگر جو کامیابیاں جنوبی افریقہ میں حاصل کیں وہ قابل فخر ہیں۔ اور چیئرمین پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان ہمارے معاملے میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے۔ ڈومیسٹک کرکٹ نظام سابق کرکٹرز کو ماضی سے زیادہ روزگار دے گا۔ بھارت کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہے، مگر ان کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ سیریز سے گریز ہمیشہ بھارت نہیں کیا ہے۔ منع کر دیا تو میئر کو دوبارہ اس فیصلے کو غور بھی کرنا پڑے گا اور تبدیل بھی کرنا پڑے گا۔ سمپل میجورٹی سے اس کے فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ میئر کو ہم پاورفل کر رہے ہیں، با اختیار کر رہے ہیں، اور سیاست کیبنٹ کی اجازت دی ہے، اس سے بچا کے چاہتے ہیں کہ کام ہو۔ میئر کے جو اختیارات ہیں اس کے لیے بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے اسی طرح میں آپ کو رورل اسٹرکچر بھی بتا دوں۔ ہم نے جو چھوٹے گاؤں ہیں جن کی آبادی 2000 2500 ہوتی ہے، اس میں پنچایت کا نظام رکھا ہے۔ یہ پنچایت کا نظام بہت حد تک ملتا ہوا ہے اس نظام کے جو کہ ہمارے یہاں پنجاب میں اور کے پی کے بلز کے اندر بھی رائج کیا گیا ہے۔ ایک پنچایت میں 7 لوگ ہوں گے، جس میں سے 2 خواتین ہونا لازمی بھی، اور جو ہائیسٹ ووٹ گیٹرز ہوں گے، جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے، اوپر سے لے کے 5ویں نمبر پہ آپ کاٹ دیں گے تو 5 وہ مرد آ جائیں گے، اور جو 2 سب سے زیادہ ووٹ خواتین کو ملے ہوں گے وہ خواتین آ جائیں گی۔ دیہی علاقے میں ہم نے عورتوں کے لیے عورتیں ووٹ کریں گی۔
अर्बन एरियाज में मैंने कहा था कि दोनों वोट करेंगे, लेकिन देही इलाके में हमने फिलहाल औरतों के लिए औरतें, और ये हमने कानून में भी लिखा है कि 10 साल के बाद रिव्यू होनी चाहिए, लेकिन पहले 10 साल के लिए। इसी का मकसद इस लोकल बॉडीज बिल का ये भी है कि ख्वातीन को आगे लाया जाए सियासत के अंदर, इससे कि जब तक वो एक्टिव नहीं होंगी, वो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, इस वक्त उनका किरदार बहुत पीछे। अब ये इसके बाद लोकल एरिया काउंसिल भी उस इलाके में भी है। उस लोकल एरिया काउंसिल को आबादी के लिहाज से रखा गया है, और इस लोकल एरिया काउंसिल की जो काउंसिल जिसमें वो जाएंगे वो है ताल्लुका काउंसिल। ये सब लोकल एरिया काउंसिलर जो हैं ताल्लुका काउंसिल के इलेक्शन, और ताल्लुका का जो नाजिम है वो उस ताल्लुका में जितने लोग रहते हैं वो उससे वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। और वहां भी यही निजाम रखा गया है कि 2/3 अक्सरियत से उस ताल्लुका काउंसिल के चेयरमैन के सदन होंगे। तो ये सिस्टम वाइज ये चल रहा है। अब बुनियादी चीज क्या की है समझाने के लिए आपको। एक इलाके में स्कूल है, पहले मैं शहरी इलाके में भी कर लेता हूं, फिर जो है देही इलाके की भी कर लेता हूं। शहरी इलाके के तमाम तर जो लोकल चीजें हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो कूड़ा उठाना हो, चाहे वो बिल्डिंग प्लान्स का अप्रूवल हो, चाहे पानी का कनेक्शन हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे बसों की रूट परमिट हो, जो जो चीजें सिर्फ शहर से ताल्लुक रखती हैं और शहर के बाहर कुछ उसका ताल्लुक नहीं है, वो सारे इख्तियारात मेयर के पास है। और जो चीजें सिर्फ उस लोकल एरिया से ताल्लुक रखती हैं, उन तमाम चीजों का इख्तियार लोकल एरिया के चेयरमैन को दे दिया गया और उसकी काउंसिल को। फर्क कि क्या है, एक इलाके में कोई रेड़ी लगाना चाहता है या पार्किंग करना चाहता है तो ये ताल्लुक उस इलाके से, तो इसके ऊपर इख्तियार किसका होगा? लोकल एरिया काउंसिल का। एक बस की रूट और उसमें कितनी बसें चलेंगी उसका इख्तियार किसके पास होगा? वो मेयर के या मेयर की कैबिनेट के पास होगा। सीमा आ जाए, ऊपर आ जाए, वो मेयर के पास होगा। अब इसके अंदर सवाल पूछा जाएगा, मैं स्कूल की मिसाल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। स्कूल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल बनाने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की भी होगी और मेयर की भी होगी, लेकिन स्कूल चलाने के इख्तियार लोकल एरिया काउंसिल के पास होगा। डेवलपमेंट सिटी का मेयर भी कर सकता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और यही सिलसिला बीएचयू के लिए भी है, यही सिलसिला प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल के लिए भी है। लेकिन टर्शरी हॉस्पिटल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई, इससे कि टर्शरी हॉस्पिटल जो है वो एक शहर से ज्यादा लोगों को सर्व करता है। मिसाल ले दी है तो जो मिसाल हमारे पीपीपी के दोस्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, एनआईसीवीडी की ले, कि एनआईसीवीडी, एनआईसीएच ये एक शहर से ज्यादा लोगों को सर्व कर रहे हैं, और टर्शरी हॉस्पिटल्स को करना भी एक शहर से ज्यादा चाहिए, चाहे वो सक्कर में हो, चाहे वो लड़काना में हो, कहीं भी हो। तो उस अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल्स को बनाने की जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की भी और मेयर की भी है, लेकिन चलाने की जिम्मेदारी मेयर की है। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका कोई ताल्लुक किसी और शहर से या सूबे से उसके असूलों को नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ एक शहर से होता है। तो तमाम डिपार्टमेंट जो एक शहर में हैं वो मेयर के नीचे आएंगे। हमारे
इस कानून के तहत जो इलाके इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड में भी हैं, वहां से भी नुमाइंदे चुने जाएंगे और वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आएंगे या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आएंगे, और उस इलाके के अंदर भी जो कवानीन मेयर बनाएगा वो लागू होंगे। वो फेडरल गवर्नमेंट के कवानीन के नहीं उसके ऊपर आएंगे। मेयर जो शहर के कानून बनाएगा उन इलाकों को मानना पड़ेगा। वाला मुल्क करार दे दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ किया कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन रियासत है। नए जवाबत लागू करके सिक्योरिटी को मौसर बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का एटमी असासों की सिक्योरिटी में दुनिया भर में 19वां नंबर है। अपने दर्जे को 7 पॉइंट्स बुलंद किया। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा। तनसीबात के तहफ्फुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 58 है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत LOC पर शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। इंडिया की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। आलमी मीडिया के LOC के दोहरे के दौरान अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को बुलाया और कहा, आए और देखिए क्या भारत आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जाएगा। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को महदूद रखता है ताकि सच को छुपाया जा सके। LOC पर शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। इंडिया की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। आलमी मीडिया के LOC के दौरे के हवाले से अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को बुलाया और कहा, आइए और देखिए क्या भारत आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जाएगा। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को महदूद रखता है कि सच को छुपाया जा सके। अभी आपको बताएं कि लद्दाख में चीन और भारत के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए। दोनों ममालिक LOC से फौज हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। चीन ने मशरकी लद्दाख में 40,000 से ज़ायद फौज पहुंचा दी है। सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी सरहद पर पहुंचा दिए गए हैं। आपको बताएं कि भारत और चीन में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए। दोनों ममालिक LOC से फौज हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। चीन ने मशरकी लद्दाख में 40,000 से ज़ायद फौजी पहुंचा दिए हैं। सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीन के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारत हमारा अहम पार्टनर है। लद्दाख पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की लड़ाई वाले इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने इंकशाफ किया कि अमरीका पूरे एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है और उनकी अलसिरेनो तैनाती अमल में ला रहा है ताकि चीन के साथ मुमकिन मुकाबले के लिए तैयार रहा जा सके। आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चीन के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारत हमारा अहम पार्टनर है। लद्दाख पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाई वाले इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने इंकशाफ किया कि अमरीका पूरे एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है और उनकी अलसिरेनो तैनाती अमल में ला रहा है ताकि चीन के साथ मुमकिन मुकाबले के लिए तैयार हुआ जा सके। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। 24 घंटों में 1,763 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 2,69,190 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5,709 हो गई। 1,382 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,13,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 2060, पंजाब में 2100, खैबर पख्तूनख्वा में 1158, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 48 और इस्लामाबाद में 162 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1763 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 91,131, सिंध में 1,15,213, खैबर पख्तूनख्वा में 32,753, बलूचिस्तान में 11,517, गिलगित बल्तिस्तान में 1,896, इस्लामाबाद 14,722 और आज़ाद कश्मीर में 1,961 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,54,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,31,000 हो गई। 94 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मोजी वायरस कोरोना अब तक दुनिया भर में 6,31,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,46,183, ब्राजील में 82,890, रूस में 12,745, भारत में 29,890, तुर्की में 5,545, ईरान में 14,853, अफगानिस्तान में 1,190 और सऊदी अरब में 2,601 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,501, इटली में 35,082, स्पेन 28,426 और फ्रांस में 30,172 हलाकतें हो चुकी हैं। अभी आपको बताएं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना सैंपल भी मनफी आ गया। फास्ट बॉलर चंद रोज में इंग्लैंड के लिए परवाज भरेंगे। आमिर का पहला कोरोना टेस्ट भी मनफी आया था। मसाजिर मोहम्मद इमरान का भी दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दोनों होटल के बायोसिक्योर माहौल में मकीम हैं। आपको बताएं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोरोना सैंपल भी मनफी आ गया। फास्ट बॉलर चंद रोज में इंग्लैंड के लिए परवाज भरेंगे। आमिर का पहला कोरोना टेस्ट भी मनफी आया था। मसाजिर मोहम्मद इमरान का भी दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दोनों होटल के बायोसिक्योर माहौल में मकीम हैं। वजारत कानून का नई एहतसाब अदालतों और जजेस की तैनाती पर माली और कानूनी बेबसी का इजहार। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 120 अदालतों के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की जरूरत है। मुल्क भर की 24 एहतसाब अदालतों में 975 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद की 3 एहतसाब अदालतों में 110 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वजारत कानून के मुकदमात की तफसीलात भी जमा करा दी गई हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजारत कानून का नई एहतसाब अदालतों और जजेस की तैनाती पर माली और कानूनी बेबसी का इजहार। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 120 अदालतों के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की जरूरत है। मुल्क भर की 24 एहतसाब अदालतों में 975 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद की 3 एहतसाब अदालतों में 110 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वजारत कानून ने मुकदमात की तफसीलात भी जमा करा दी है। तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इफ्तिखारुद्दीन का सेहत जुर्म से इनकार। बयान दिया कि केस में अपना दिफा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन की समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर गवाह और शवाहिद तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दी है। आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इफ्तिखारुद्दीन का सेहत जुर्म से इनकार। बयान दिया कि केस में अपना दिफा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखारुद्दीन की समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर गवाह और शवाहिद तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब को अब बंद हो जाना चाहिए। चेयरमैन मुसाफी हो जाएं। यह इंतकाम अब मजीद ज्यादा देर नहीं चल सकता। यह एहतसाब नहीं इंतकाम है, इससे मुल्क नहीं चल सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो चुका कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका है। 2 साल में अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। एतजाज एहसन की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। नहीं है, ये इंतकाम है और नैब का अदारा जो है वो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये कोई एहतसाब नहीं है और ये कोई नैब नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का एक अदारा है और ये इस तरह से ना मुल्क चल सकता है ना हुकूमत चल सकती है। ये इंतकाम जो है, ये इंतकाम इस मुल्क को लेके बैठ गया है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब को बंद करने का मुतालबा, कहते हैं नैब गैर आईनी और गैर कानूनी इदारा है, चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की टीम को नाअहल और नालायक करार दे दिया, कहा शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। पीआरटी में जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, मालूम जब्बा पे करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं, बिलियन ट्रीज पे ना पैसा का हिसाब देने को तैयार, ना दरख्त का हिसाब देने को तैयार है। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन। पंजाब के अवाम ये इनऑर्गेनिक सिलेक्टेड जो पंजाब हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, इन्होंने हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है। जिन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है। लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन? -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना करेगी। हमें कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वजीर आजम ने कहा नेशनल असेंबली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वजीर आजम के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो ऑपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है, अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। सेनेटर रजा रुबानी ने भी एहतसाब का नया कानून लाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पार्लियामान ने किरदार अदा ना किया तो तारीख के मुजरिम होंगे। एक नए फेडरल अकाउंटेबिलिटी कानून की जरूरत है, सबके लिए यकसा कानून होना चाहिए। सेनेटर रजा रुबानी का कहना था कि दीगर अदालतों को जमानत के केसेस में इस फैसले पर अमल करना होगा। सेनेट ने सस्ते इंसाफ के लिए सिफारिशात दी, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। रजा रुबानी ने तजवीज़ दी कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए नए एहतसाब कानून का तयन करना होगा। एक नए फेडरल अकाउंटेबिलिटी कानून की जरूरत है, सबके लिए यकसा कानून बनाया जाए। एक कानून और एक तरीकाकार सबके लिए होना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। दोनों ईवान की बार पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। कमेटी की तश्कील करके टाइम फ्रेम के अंदर नए एहतसाब का कानून लाना पड़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा पीपल्स पार्टी क़यादत के बयानात पर मैदान में उतर आए। कहा चोरों से निजात कौम का मुकद्दर है। इमरान खान ने रायबैंड और सिंध के चोरों से बेहक वक्त कौम की जान छुड़ाई है। बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है उन्हें आवाम को लूटने से ना कोई पूछे और ना रोके। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि फरजंद जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि एहतसाब से बचने के लिए नारा लगाने की तैयारियां कर रहे हैं।
نیب یا قانون پر نہیں، انہیں چوری اور ڈاکے زنی کے بارے میں سوالات پر اعتراض ہیں۔ چوروں سے نجات قوم کا مقدر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ بلاول کی نیب بند کرو کی پکار کا مطلب ہے ہمیں عوام کو لوٹنے سے نہ کوئی روکے اور نہ پوچھے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے گریزاں ہیں۔ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہونے پر اپوزیشن مجھے سیاسی ولی تسلیم کر لے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے اور پانی سے پکوڑے تلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تحریک کے اعلان سے پہلے ہی اپوزیشن کی صفوں میں انتشار حسرت ہے مجھے ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے کے مستاق ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پنجاب کابینہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کے بعد بزدار حکومت مضبوط تر ہے۔ عثمان بزدار پر اعتماد کی وجہ ان کے انتظامی صلاحیتوں اور بہترین کارکردگی ہے۔ آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاس بھی اختیار ہیں، لوکل ایریا کونسل کے پاس بھی اختیار ہے۔ اب آپ نے عید کے بعد ریسٹورنٹس اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں شادی ہالز ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ عید کے بعد ریسٹورنٹس کھولنے جا رہے ہیں۔ عید تک ایس او پیز بنا کر وفاقی حکومت کو بھجوائیں گے۔ کرونا کیسز جیسے جیسے نیچے آئیں گے ویسے ویسے سیکٹرز کھولے جائیں گے۔ شادی ہالز مالکان سے میٹنگ میں 1 ستمبر کو کھولنے پر اتفاق ہوا تھا۔ شادی ہال ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت دیں گے۔ پنجاب حکومت تنہا نہیں، وفاق اور دیگر صوبوں کو ساتھ ملا کر فیصلے کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا۔ عدالت نے پاکستان میں یوٹیوب بند کرانے کا عندیہ دے دیا۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے، ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں، عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، ہماری کارکردگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے، نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے۔ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس قاضی امین نے کہا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندان کو بخشا نہیں جاتا، کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے، ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا، آرمی، عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ پی ٹی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے، صرف رپورٹ کر سکتے ہیں۔ جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے، امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں۔ جسٹس قاضی امین نے کہا ایسے جرم کے مرتکب کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی، کئی ممالک میں سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ عید سے قبل ٹریفک وارڈن بے جا چلان کرنے لگے، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ لاہور سے شراز نثار کی رپورٹ دیکھیے۔ اور خاص طور پر عید کے موقع پر شہریوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وارڈنز کی طرف سے جو ہے وہ بے جا چلان کیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آج دکھائیں گے۔ کسی بھی دن دہاڑ اور خصوصاً عید کے موقع پر وارڈنز کی طرف سے بے جا چلانوں کی شکایات پر حقیقت جاننے کے لیے ٹی وی ٹوڈے نے ایک سروے کیا۔ اس میں شہریوں، وارڈنز اور چیف ٹریفک آفیسر سے بھی بات کی گئی۔ شہریوں نے کہا کہ معمولی اور اچانک ہو جانے والی غلطی پر وارننگ دے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ کال آئی تھی گھر سے ایمرجنسی کے لیے، اس لیے وہ سن رہا تھا تو اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے صرف اتارا ہی ہے۔ اب ویسے سن نہیں تھا سکتا، انہوں نے کام تھا ذرا تو اس لیے میں نے اتار کے رکھی، ابھی پہننے لگا تھا تو انہوں نے روک لیا۔ سر جا رہا تھا وہاں سے، یعنی کہ نزدیک پڑے گا، میں نے جانا ہے کوٹ عبد المالک، وہاں یہ نزدیک تھا، مجھے بس جلدی میں آ گیا اسی وجہ سے، اور میں لوکیشن دیکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ فون پہ لگا ہوں۔ وارڈنز کا کہنا ہے کہ چلان صرف اسی کا کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہم عید کے موقع پر بھی ڈیوٹی کرتے ہیں تاکہ شہریوں کے لیے ٹریفک مسائل پیدا نہ ہوں۔ جب بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس پہ چلان کیے جاتے ہیں، اس سے عید کا یا کسی اور ایونٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمیشہ جب بھی چلان کیے جاتے ہیں وائلیشنز پہ کیے جاتے ہیں۔
नहीं, ईद के मौका के ऊपर तकरीबन रिलैक्सेशन ही होती है। जो ज़्यादा करते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रैश ड्राइविंग कर दी या वो ट्रिपलिंग कर दी, वो भी शादो नादर, ज़्यादा नहीं। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद ने बात करते हुए कहा कि वार्डन्स की न सिर्फ सड़कों पर ड्यूटियां लगाई गई हैं, बल्कि मवेशी मंडियों के लिए भी उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि शहरी जो है वो ट्रैफिक मसाइल से दो चार न हो। इस दफ़ा जैसा आपकी नॉलेज में है कि 12 मवेशी मंडियाँ मुख्तस की गई हैं, तो उसके लिए हमने इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत हमने ऑलमोस्ट डबल डिप्लॉयमेंट की है, और हमारे कोई 40 STWs हैं और 326 के करीब हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि ड्यूटीज़ पे मामूर हैं। इस हवाले से बात करते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने यह भी कहा कि किसी भी वार्डन को ये नहीं कहा गया कि ईद के मौका पर जो है वो शहरियों के बेजा चलान किए जाएं, बल्कि उनको ये कहा गया है कि अगर कोई मामूली गलती करता भी है तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। ईद के मौका पर भी सड़कों पर मौजूद वार्डन्स का कहना है कि उनको कोई भी ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया गया कि बेजा चलान किए जाएं। चलान सिर्फ उसी का होता है जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। कैमरामैन अबू बकर के साथ शिराज निसार, TV टुडे, लाहौर। NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। वफाकी हुकूमत ने मुशीर ख़जाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के इंजीनियर खुरम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी गई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया वह हुकूमत ने वापस ले लिया। हुकूमत ने अब नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। नून लीग के वकील बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, हमारा इतराज़ था कि हमसे मुशावरत के बगैर मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया। हमारी ये कामयाबी है कि हुकूमत को हमने आइन के तहत काम करने पर मजबूर किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुराने मालियाती कमीशन की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन पर मुझे भी एतराज़ था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे से मुताल्लिक अमूर, सियासी सूरत हाल और गंदम आटे की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। 1-on-1 मुलाकात में सूबे के इंतजामी अमूर में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी बातचीत हुई और इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़ार को अहकामात भी जारी किए। ख़ास तौर पर पंजाब में आटे और गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हवाले से अहकामात भी जारी किए और किसी तौर पर भी सूबे में गंदम और आटे का बहरान पैदा नहीं होना चाहिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वाफर गंदम मौजूद है। जो भी गंदम ज़ख़ीरा करें उन्हें किसी सूरत ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने माफियाज पर हाथ डाला है और आवाम की बेहतरी के लिए वो इक़दाम उठाते रहेंगे। मुलाकात में सूबे में बाज़ इंतज़ामी ओहदों और बाज़ वज़रा की तब्दीलियों पर भी मुशावरत हुई और इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सिंध ने विफाक से खुशहाल खान खटक, बुलान मील और मोहनजोदड़ो ट्रेन बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह कहते हैं कि शेख रशीद ने 2 साल में ट्रेनों का बुरा हाल कर दिया। विफाक ने अवाम को ट्रेन की सस्ती सहूलत से भी महरूम कर दिया है। शेख रशीद ने जानबूझकर लाड़काना की 3 ट्रेन बंद कर दी। ट्रेनें बंद होने का वज़ीर आज़म नोटिस लें और फौरी बहाल करने का हुक्म जारी करें। इमरान खान ने शेख रशीद को रेलवे का दिवालिया करने का मिशन दिया हुआ है। माजी की शानदार सवारी तांगा तरक्की करते ज़माने ने नकूश भी मिटा दिए। नई नस्ल तांगे की सवारी से लाइल, बसों, वैगनों और ऑटो रिक्शे ने कम खर्च तांगे को ख़त्म कर दिया। शाहिद जावेद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वक्त का पहिया इस तेजी से घुमा कि तांगे की टक टक करती आवाज़ें शोर शराबे में कहीं खो गईं। बाहर से आए मेहमान हों या फिर अंदरूने शहर के लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तांगे की सवारी पर सफ़र करना पसंद करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बसों, वैगनों और रिक्शों ने तांगे की जगह संभाल ली। ये तांगे बाज़ारों और रेलवे स्टेशनों पर भी मिला करते थे, जहां तांगे मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फराहम करते थे। तांगे की सवारी को ना CNG की कोई फ़िक्र थी और ना ही पेट्रोल का कोई मसला था।
तांगा एक हवादार सवारी हुआ करती थी, जहां शहरी पुरसकून और इंतहाई कम किराया से भी तांगे पर खुश होकर सफ़र करते थे। शाहिद जावेद चौधरी, टीवी टुडे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर पत्तों से अहम खबर शामिल करेंगे। पत्तों के इलाके हबीबाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों रुपए, रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स बरामद कर लिया गए। मुलजिम दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। पत्तों से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर इलाका हबीबाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। हजारों रुपए, रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिम दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर बात करने के लिए पत्तोकी से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद चौधरी ने। शाहिद चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असद सबानी थाना सदर पत्तोकी के SHO आतिफ नजीर की सरबराही में हबीबाबाद चौकी इंचार्ज गुलाम साबर ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जा से हजारों रुपए नकदी, लोटर, रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोबाइल, असला और लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। यहाँ असद सबानी मैं आपको बताता चलूँ, ये डकैत गैंग पत्तोकी हबीबाबाद और गिरदोनवा में राजधानी चोरी की वारदातें करते थे। कामयाब कार्रवाई पर DPO कसूर जैद मरबत ने थाना सिटी पुलिस को शाबाश दी है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। DPO की जानिब से शाबाश दी गई है और डाकू का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पिंड दादन खान में पुलिस, चोर गिरफ्तार। 6 लाख के मवेशी बरामद कर लिए गए। मुलजिम मवेशी लोडर से दूसरे शहर ले जा रहा था। आपको बताएं कि एक कार्रवाई की गई है और मवेशी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिंड दादन खान में पुलिस, चोर गिरफ्तार कर लिए गए। 6 लाख के मवेशी बरामद, जबकि मुलजिम मवेशी लोडर से दूसरे शहर ले जा रहा था। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी चोरी होने का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। पिंड दादन खान में पुलिस, चोर गिरफ्तार। आपको बताएं कि पिंड दादन खान में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लाख के मवेशी बरामद कर लिए गए। मुलजिम मवेशी लोडर से दूसरे शहर ले जा रहा था। पिंड दादन खान में पुलिस ने चोर गिरफ्तार कर लिए। 6 लाख के मवेशी बरामद किए गए, जबकि मुलजिम मवेशी लोडर से दूसरे शहर ले जा रहा था। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी चोरी होने का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयां जारी हैं और पिंड दादन खान में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया और 6 लाख के मवेशी भी बरामद कर लिए हैं। मुलजिम मवेशी लोडर से दूसरे शहर ले जा रहा था। पिंड दादन खान में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 6 लाख के करीब मवेशी जो है वो बरामद किए गए हैं और मुलजिम मवेशी लोडर से दूसरे शहर ले जा रहा था। पिंड दादन खान में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और 6 लाख के मालियत के मवेशी बरामद कर लिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे उल्फत बलोच। उल्फत बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद से कबल ही पुलिस ने कमर काटी। चोर लुटेरे लगाम हुए तो पुलिस ने नहीं पकड़ने की ठान ली। पिंड दादन खान पुलिस ने मवेशी चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 6 लाख मालियत के मवेशी बरामद कर लिए। मुलजिम अकेले ही चोरी करता था, फिर लोडर रक्शे में डाल के दूसरे शहर में फरोख्त कर देता था। मुलजिम के कब्जे से भैंस और बैल बरामद हुए, जिनकी मालियत तकरीबन 6 लाख बनती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अवामी हल्कों की तरफ से पुलिस को खराज तहसीन। जी बहुत शुक्रिया उल्फत बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अमरीकी रियासत अलास्का के साहिल से 100 किलोमीटर दूर 7.8 की शिद्दत के ज़लज़ले ने इमारतों को हिला कर रख दिया।
सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। किसी जानी और माली नुकसान की तस्दीक न होने के बाद वार्निंग वापस ले ली गई। अलास्का के शुमाल मशरक में समंदर की तह में शदीद जलजला नोट किया गया, जिसके बाद पूरी साहली पट्टी पर सुनामी वार्निंग जारी की गई। करीबी जजायर को भी खबरदार किया गया। ताहम किसी नुकसान की इत्तला न मिलने के 2 घंटे बाद सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।